बहुत बहुत धन्यवाद। Namaste, sir. हाँ, नमस्ते मैडम। Sir, actually we are from South, sir. ओके मैम। I know little bit Hindi, but not detail. ओके I ओके। want one more thing, a regional language. I want one more thing, sir. And next, offline classes also we are interested, sir. That's Anyway, great. but one more thing, sir. This 3 days or 4 days is not sufficient for beginners, sir. I understand. I Sir, understand. this is our basic requirement, sir. Actually, because of this cyber crime, no, sir, I am irritating to use cell phones, sir. Okay. Because then basically we are not having that much knowledge, sir. After Right, right. joining only, I came to know little bit. This is my Right. request, sir. Okay, Thank you. Ben. Thank you. See, I'll tell you something about this program, how this program started. During the pandemic time when lockdown was there and we all were sitting in our homes. So then we started this program just to connect with the senior citizens and housewives because these are the soft targets for fraudsters. So we came up with this idea and we designed the program. We started this program and we the interest of senior citizens and housewives were it was so encouraging that we continued this program since then. And you will be happy to know that a proposal has been submitted to ministry where awareness program for senior citizens will be conducted in regional languages throughout the country. So that proposal is already with the ministry, and I hope that very soon it may get approved. So this problem will be resolved, I guess. So, anyways, I'll not take much time because today our guest, engineer Naren Kumar Yadav Saab, is with us, and we requested him to spare some time to attend this program and interact with you people. And he had been like chief engineer and MD in irrigation, and he's presently retired and is with institute very active. He's playing very active role in institution of engineers, Uttarakhand state chapter. So I'll request Yadav sir to kindly interact with the participants. Yadav sir. Yes, thank you, sir. Are you A listening very all? good morning to you, sir. सभी को नमस्कार. नमस्कार Good morning. नमस्कार 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 सर. Namaskar. Thanks, Director sir. It's give me immense pleasure to address you, sir. ये अत्यंत हर्ष का विषय है सर कि हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है और हम हमेशा आपसे डिस्कस भी करते रहते हैं कि किस तरह से लगातार समाज में हमारे वरिष्ठ तो क्या अब तो हमको डे टू डे लाइफ में हर एक को फ्रॉड का सामना करना पड़ रहा है और हमको बहुत ही विजिलेंट की आवश्यकता है. मैं आपको जो फ्रॉड्स किस तरह से होते हैं ये तो हमारे नीलट के द्वारा हमारे अधिकारियों के द्वारा आप सबको बहुत अच्छे से बता दिया गया है. मैं सिर्फ इतना चीज चाहूंगा कि ये फ्रॉड्स ना हो उसके लिए हमें एक स्वस्थ मानसिकता से स्वस्थ शरीर से रहना आवश्यक है. तो मेरी सबसे अनुरोध है अपने फ्रेंड से. आज भी हम लोग जो है मैं IIT रुड़की से पढ़ा हूँ और जितना वहां पर पोस्टिंग रहा है डेली हम IIT प्रोफेसर हम लोगों ने एक WTC बना रखा था, वॉकिंग टॉकिंग क्लब. यानी आप वॉक करें, टॉक करें, हंसें, गेट टुगेदर करें, फैमिली के साथ एंजॉय करें. ये हमारे जीवन का अब ये मिशन है. हम लोग इस जीवन के वरिष्ठ नागरिक यानी 60 प्लस में आ चुके हैं तो हमको अपने बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है. और स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू डेली ए मॉर्निंग वॉक एटलीस्ट 2 to 4 किलोमीटर और एच यू स्ट्रेंथ आपकी सामर्थ्य के अनुसार. आपको बहुत ज्यादा नहीं स्ट्रेस लेना है कि मैं 5 किलोमीटर ही चलूं. अगर 1 चल सकते हैं 1 किलोमीटर चलें, अगर 100 मीटर चल सकते हैं तो 100 मीटर चलें, लेकिन चलें जरूर. और इफ यू गेट ए फ्रेश एयर नियर योर हाउस गार्डन, आप वहां पर बैठें. और अगर गार्डन भी नहीं मिलता तो मेक योर हाउस एज ए गार्डन. आजकल अपने घर को गार्डन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है और ये शौक होना चाहिए प्रकृति से जुड़ने के लिए. जितना आप प्रकृति के नजदीक रहेंगे उतना ही आप अपने को स्वस्थ पाएंगे.
तो मैं चाहूंगा कि आप हर आदमी पौधे लगाए, अपने घर में गमले लगाए, उसके चारों तरफ ऐसे लगाएं, कुछ बड़े पौधे हों, कुछ फूल के हों, जो आंखों को भी अच्छा लगे और आपके मन को जो है एक हर्ष का अनुभव कराए। तो मेरे सभी वरिष्ठ नागरिक सबको मैं नमस्कार करता हूं और प्रणाम करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि बी एक्टिव नंबर 1 बहुत जरूरी है, और घर को ही एक ऐसा माहौल बनाएं, किसी तरह का स्ट्रेस ना रखें, ना बच्चों के प्रति रखें, ना ये बच्चा नहीं कर रहा। अब हमने बच्चों को बड़ा कर दिया है, बच्चे बड़े हो गए हैं, सब समझदार हैं। अब हमें बच्चे हमें देखें, उसकी भी आप लालसा छोड़ दें, अब हमको हम ही को देखना है। लाइफ पार्टनर के साथ एंजॉय करिए, एक्टिव रहिए, रिच डाइट लीजिए। शाम के टाइम जो मैं मॉर्निंग में एक बात करता हूँ, हमेशा एक सबको एक राय भी देता हूँ कि अगर शुगर नहीं है किसी को, तो सुबह उठने के बाद 2 गिलास पहले गर्म पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए, थोड़ा वॉक करके फ्रेश होने के बाद वॉक करिए, वॉक करने के बाद हमेशा 1 गिलास पानी गर्म, उसमें 1 नींबू और 1 चम्मच शहद आप डाल के रखें, तो आपका हार्ट भी मजबूत होगा, आपका इम्यून सिस्टम भी बढ़ेगा, आपका विटामिन सी भी बढ़िया होगा। और बोन्स के लिए अगर आपकी हड्डियां किसी की वीक हैं, तो रोज आप हल्का देसी घी में मखाने को हल्का सा तल के, मखाने का बहुत अच्छा उपयोग करें, क्योंकि उसमें विटामिन सी हमारा डी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है और वो काफी उसमें आपको हेल्प करेगा। और नींबू और शहद ये और गर्म पानी के साथ ये बहुत अच्छा एक टॉनिक है, इसको आप उपयोग करें। नेक्स्ट इज दैट वीकली दैट आई विल रिकमेंड यू एंड आई एम डूइंग इट रेगुलरली, ऑन एवरी संडे यू ऐड ए हाफ स्पून टर्मेरिक, जिसको कहते हैं हम टर्मिक वाटर। हफ्ते में अगर एक दिन भी आपने यूज किया, नींबू पानी शहद और उसमें आधा चम्मच हल्दी मिला करके स्टर करके छोड़ दीजिए, जो सॉलिड पार्ट है वो नीचे बैठ जाएगा। ये आपके लीवर के लिए एक टॉनिक का काम करेगा। 1 गिलास पानी लीजिए गुनगुना, 1 नींबू निचोड़िए, आधा चम्मच 1 चम्मच शहद डालिए उसके अंदर और आधी चम्मच हल्दी, और अगर यदि आप उसमें मिल जाए तो हल्का सा जो है दालचीनी का जरा सा एक छोटा सा पाउडर जरा सा मिलाइए थोड़ा सा, वो आपके हार्ट के लिए और उन सब के लिए बहुत अच्छा होगा और लीवर आपका बहुत अच्छा स्वस्थ हो जाएगा। ये सप्ताह में 1 दिन आप करेंगे। और हम चूंकि अब स्टेज पर आ गए हैं कि हमें फूड पे भी कंट्रोल करना है, अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करना है, यानी हमको फास्ट फूड नहीं खाना है। अगर फास्ट फूड का मन करें तो आप अपने घर में जो क्योंकि शुद्धता से बन सकता है, तो घर में बना हुआ उपयोग करें, फास्ट फूड करें। समोसे खाना है तो एयर फ्रायर का उपयोग करें, एयर जिससे तेल तला हुआ हम मसाले ना खाएं, एयर फ्रायर से बनाएंगे समोसे, वो आपको इतना अच्छा लगेगा। कच्चे मसाले वो बनाइए समोसे, हल्का सा उसमें देसी घी लगाइए और एयर फ्रायर में रख दीजिए, आपको 15 से 20 मिनट में बहुत अच्छा वो मिल जाएगा। नंबर 1। नंबर शाम के टाइम अगर आपने 3 बजे भोजन कर लिया है, 3:30 बजे कर लिया है नाश्ता, अगर आपने 10 साढ़े 10 बजे किया है, तो शाम का आप भोजन अगर या तो करें तो 6 बजे सूर्यास्त से पहले कर लें, और यदि संभव है तो सूप ही लें, शाम को हल्का लें, और एक दूध को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। दूध ऐसा एक प्रोडक्ट है जो हमारा कहते हैं कि परफेक्ट फूड है, और उस दूध को मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप बिल्कुल ऐसे ही दूध पिए। गाय का दूध अगर मिल जाए बहुत अच्छा है, और गाय के दूध में आधा चम्मच हल्दी और चुटकी भर उसमें काली मिर्च अवश्य मिला लें, जिससे ये कैटलिस्ट का काम करेगा। और आपको किसी भी तरह की स्ट्रेस होगी, भूलने की बीमारी होगी, वो हल्दी एक जो टर्मेरिक मिल्क है और टर्मिक वाटर जिसको कहते हैं, कि ये रीजनरेशन ऑफ सेल्स करने का सक्षम रखता है और मादा रखता है। और मैं ये प्रैक्टिकल किया हुआ है, और आप सब अगर इसको उपयोग करेंगे तो आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर ही आपको काफी परिवर्तन इसमें नजर आएगा। जिसको टर्मेरिक मिल्क के लास्ट फूड आइटम जिसको मैं कह रहा हूँ, सोते टाइम जब भी लें आप टर्मेरिक मिल्क जरूर लें, और गाय का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, गाय का दूध उपयोग करें। उसमें हल्की आधी चम्मच हल्दी उसमें उबालें, और उसमें काली मिर्च जरूर डालें। काली मिर्च एक्चुअली इसमें जो है काली मिर्च एक बहुत ही बूस्टर है। ये अगर टर्मेरिक के साथ आप काली मिर्च का उपयोग करते हैं तो किसी तरह का जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट स्ट्रोक की समस्या है, वो एक बहुत बढ़िया ये सब चीज़ है। और एक और चीज़ मैं इसके साथ ऐड करूंगा कि आप
चूंकि कई चीजें मैं बता रहा हूं, आप जिसको कहते हैं हम लोग आयुर्वेद मेडिसिन, त्रिफला, हरड़, बहेड़ा, आंवला, इसको अपने डाइट में, आर यू हियरिंग ऑल? आवाज आ रहा है? यस सर, प्लीज कंटिन्यू। बहेड़ा, आंवला अमृत कहलाता है, रसायन, अमृत रसायन है आयुर्वेद में। और यहां तक है कि अगर आपने 12 साल त्रिफला का उपयोग किया, आंवले का उपयोग किया, तो आप दिन में, जिसको कहते हैं कि एक तारे, यू कैन सी द स्टार्स इन द डे, वो आंखों की रोशनी के लिए सबसे बढ़िया है। लेकिन उसमें मैं 2-3 आइटम और हमेशा जोड़ता हूँ। हरड़, बहेड़ा, आंवला 1, 2, 4 का फॉर्मूला है, आप एक एक करके भी ले लेंगे तीनों को 100-100 ग्राम। इसके अंदर 50 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम मेथी और 50 ग्राम सौंठ और जोड़ दीजिए, तो ये आधा किलो आपका 1 महीने का राशन बन गया। और जब भी दिन में कभी भी मन करे 1 चम्मच गुनगुने पानी से लीजिए, तो आप रामबाण है, प्रयोग करिए, आपको जीवन में, आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन जरूर नजर आएगा। ये मेरा दावा है। और ये हमेशा मैं कहता हूँ, जब भी मैं अपने इंस्टीट्यूशन में भी या अपने मैं IIT में भी जब लेक्चर लेता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने लिए समय निकालिए। मोबाइल सुबह के टाइम 2 घंटा उसको दूर कर दीजिए। हम जब भी टहलते हैं मोबाइल हम कभी लेके नहीं जाते। सर ये अभी रिपीट करोगे? एक्सक्यूज मी सर, ये रिपीट करोगे सर? अभी लास्ट वाला सर रिपीट करोगे? लास्ट वाला, ये अजवाइन और ये 3 चीज बताइए। हाँ सर, ये अमृत रसायन, हरड़, बहेड़ा, आंवला 1, 2, 4 इसलिए कहा जाता है कि आंवला हम ज्यादा इसलिए ऐड करते हैं कि ये हमारी वेन्स को सॉफ्ट करता है। 1, 2, 4। लेकिन आजकल जो बाजार में उपलब्ध हो रहा है 1, 1, 1, यानी 1 हरड़, 1 बहेड़ा और 1 आंवला। लेकिन मैं ये कहता हूं कि 1, 1, 2 भी कर लें, यानी आंवला को डबल कर दें, 100 ग्राम हरड़ करें, 100 ग्राम बहेड़ा करें और 200 ग्राम आंवला करें, तो ये हो गया 400 ग्राम सर। अब घर में 3 चीज और हैं हमारे पास। एक अजवाइन है सर। हाँ जी सर। के लिए रामबाण है सर, अजवाइन। अजवाइन। एक मेथी है सर। मेथी सर, हाँ जी। जिसको घुटने में कोई भी प्रॉब्लम हो सर, मेथी उसके लिए बहुत बड़ी चीज है सर। और तीसरी चीज मैंने बताई सर, सौंठ। सौंठ सर, ठीक है। सौंठ क्या है कि सर, जो हमारी वेन्स हैं, जो ब्लड का, हमारे जिसमें ब्लड हमारा प्रवाहित होता है सर, उनको स्टिफनेस को कम करता है सर, वो फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। तो सर इनको 50-50 ग्राम, तो ये आपका 550 ग्राम हो गया। मेरे ख्याल से 2 महीना चलेगा सर, अगर एक लेते हैं और मियाँ बीवी दोनों लेते हैं तो 1 महीना घर में लाइए सर। साबुत नहीं है तो सर उस दिन 500 रुपए का सर्वेंट लाइए, सुखा करके वो कूटेगा, छान के उसको, बाजार वाला मशीन से पिसे हुए, कोई गारंटी नहीं है वो क्या चीज है सर। तो ये आप उपयोग करेंगे सर तो आप एक स्वस्थ, मैं कहूँगा। और ये मैं जो हल्दी वाला, दूध वाला बताया हूँ सर, ये तो आप हैबिट बना लें सर कि शाम को लेना ही लेना है। लेकिन काली मिर्च चुटकी भर जरूर डालनी है उसके अंदर, क्योंकि काली मिर्च डालने से हल्दी का डबल नहीं 10 टाइम्स उसकी इम्यूनिटी सिस्टम और बढ़ा देगा सर। एक्सक्यूज मी सर, लेना कैसे लेना है? ये जो आपने बोला इसका राइट अप या वीडियो भेज सकते हैं आप? सर मैं बोल रहा हूँ, और जहाँ जिसको भी चाहिएगा सर, मैं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स में यहाँ देहरादून में ISBT के सामने हूँ, 11 से 4 बैठता हूँ, क्लास भी लेता हूँ। और मेरा नंबर है, मैं नंबर शेयर कर रहा हूँ सर आपके साथ, 95575 NK यादव, 83 बैच, IIT रुड़की। हरिद्वार में कभी गए हो तो शिव धनुष ब्रिज, ओम ब्रिज मेरे बनाए हुए हैं सर। नंबर रिपीट करेंगे जरा? ब्रिज का नंबर रिपीट करेंगे जरा? नंबर 955 75 3 8030। थैंक यू सर, थैंक यू। ये प्रातः 9 बजे के बाद, क्योंकि मैंने जैसे आप अनुरोध किया है, और अभी हमारे नीलट के अधिकारियों ने कहा है कि रात में जब भी वो सोए हैं, आप घर में, हम लोग वाईफाई यूज जरूर करते हैं रात में सर। 10 बजे जैसे ही आप सोने जाएं, वाईफाई कनेक्शन भी ऑफ कर दीजिए, बिल्कुल ऑफ कर दीजिए सर घर में। क्योंकि आप ये देखिए कि जब बिना तार के घर में
आपको वाईफाई आ रहा है तो उसकी वेव्स और उसकी रेडिएशन कितने स्ट्रांग हैं, तो घर को आपको वाईफाई से मुक्त कर दीजिए, क्योंकि बच्चों से जिससे भी आपको बात करनी है वो बात हो जाती है। अननेसली वाईफाई को करके आपकी जो दिमाग है, जो नींद है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और रात में बहुत लोगों को लाइट जला करके सोने की आदत है, लाइट ऑफ कर दें, बहुत हल्का सा ऐसा रखें कि जो आपको एक, इसलिए हल्की सी मैं बता रहा हूँ कि जब रात में आप बाथरूम करने के लिए उठें तो उजाला पैर एकदम ना हो और एकदम अचानक ना उठें सर, हैव ए रेस्ट। क्योंकि आप ये जानते हैं गुरुत्वाकर्षण है, आप बॉडी एक उसमें मोशन में है। साइंस के बिल्कुल कहता है कि जब भी आप उठें धीरे से उठें, थोड़ी देर आप रेस्ट करें, जिससे ब्लड सर्कुलेशन आपका माइंड तक पूरा पहुंच जाए और तभी जाए। और एक और सर बहुत बड़ी, मैं ये विशेष रूप से अपने मेल्स सीनियर सिटीजन्स को कहता हूं, हमेशा कहता हूं सर, और ये गांठ बांध लीजिए सर, महिलाओं को आपने कभी नहीं सुना होगा प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स। सर आप जब भी यूरिन करें, बाथरूम में जाएं, बैठ के करें सर, खड़े होकर के कहीं पर भी यूरिन ना करें सर। आप देखेंगे बहुत सारी समस्याएं आजकल, रात में उठ करके लोग खड़े होकर के यूरिन करते हैं, फेंट होकर बेहोश होकर गिर जाते हैं और ब्रेन्स की इंजरीज हो जाती हैं। सर जब भी हैं आजकल सब हम यूरोपियन स्टाइल यूज करते हैं, उस पर बैठ करके यूरिन जाएं, पास करें, वो एक आपका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सर। और मैं हमेशा सबको कहता हूं कि किसी को, अभी हमारे एक बहुत सीनियर थे, मेरठ में ब्लॉक प्रमुख भी रहे और यंग थे, अराउंड 50 ईयर्स एज, रात में अचानक उठे, यूरिन के लिए गए और एज यूजुअल जो खड़े खड़े करते हैं, और वो कुछ चक्कर आया और गिरे और ब्रेन की इंजरी हो गई उनको। इट टुक अराउंड मोर देन 6 मंथ्स उनको रिकवर होने के लिए। तो मैं हमेशा जब भी लेता हूँ, मैं तो जब IIT में इवन एमटेक वालों को भी पढ़ाता हूँ तो हमेशा उनको कहता हूँ कि अपने लिए, आप दुनिया के लिए समय दे रहे हो, अपने लिए समय नहीं दे रहे हो। अपने लिए सुबह के 2 घंटे ईयर मार्क कर दीजिए कि इन 2 घंटे में मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। और आप देखेंगे कि 2 घंटे आप 7 से 9 कर देंगे तो लोग बाग, यार दोस्त रिश्तेदार आपको 9 बजे के बाद ही कॉल करेंगे, क्योंकि जानेंगे कि ये मिस्टर यादव 9 बजे तक ग्राउंड में रहते हैं, इसके बाद योगा करते हैं, नींबू पानी शहद अपने करते हैं, पीते हैं, एक हेल्दी है। और एक और सर, मेक इट ए हैबिट, जिसने हिंदुस्तान नहीं देखा है, प्रत्येक 6 महीने में एक टारगेट बना लें कि इस महीने, इस क्वार्टर में, इस 6 महीने में मुझे इस स्टेट में जाना है, सीजन के हिसाब से घूमने जाना है। और जो समर्थ हैं, और मुझे मालूम है सभी समर्थ हैं, साल भर में एक बार देखें कि दुनिया क्या कर रही है। दुनिया बहुत बड़ी है। अगर कोलंबस और वास्को डी गामा भी अपने घर में रहे होते तो ना अमेरिका खोज पाते, ना भारत खोज पाते। तो उनका उपयोग करिए। आजकल हमारे सिस्टम्स बहुत सस्ते हो गए हैं, मेक माई ट्रिप से, SOT से, किसी से भी, अपने जो नियर एंड डियर हैं, साल भर में 1-2 विजिट बाहर की करिए और 2 विजिट भारत की करिए, भारत भ्रमण करिए। आप स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, दिमाग हमारा हेल्दी रहेगा, दुनिया देखेंगे, सब जाएंगे, गुस्सा छोड़ दीजिए। और बहुत बढ़िया एक लीड, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ दिमाग के अंदर ही सारी चीजें होती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ, यदि किसी को किसी भी उस पर शक हो, जो मैंने तो बहुत हल्की चीज वो बताई है कि जो मैं उपयोग भी करता हूं और जिनका हल्का फुल्का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। त्रिफला कैसे लेना है? त्रिफला सर गुनगुने पानी के साथ लेना है सर। ठीक है, थैंक यू सर। और ये इसके लिए कोई बंदिश नहीं है कि आप सुबह लें कि शाम लें। आप सुबह उठ के भी जब गुनगुना पानी आप 2 गिलास पिएंगे, आप तब भी ले सकते हैं। आप देखेंगे आपका, क्योंकि सारी बीमारियां पेट से होती हैं, और त्रिफला एक रामबाण है जिसको अमृत कहा है आयुर्वेद में, और वो अमृत है, वास्तव में अमृत है। और एक और चीज सर, जब भी आप सोएं, 1 गिलास गुनगुना जब दूध तो पी लिया, बहुत अच्छा हो गया, लेकिन रात में यदि उठ के कहीं बाथरूम वगैरह जाएं, हमेशा पानी अपने पास रखें, गर्म भी और ठंडा भी। हल्का सा गुनगुना पानी, चाहे आधा गिलास ही पिए, वो जरूर पी लें। सर ये वॉशरूम से पहले या वॉशरूम के बाद? आप सर जब गए तो आपको पानी, बॉडी के में पानी की थोड़ी कमी हो जाती है सर। और आपने देखा होगा कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको जो स्ट्रोक्स हैं मॉर्निंग में आते हैं सर, 3-4 बजे जब गहरी नींद आती है
पता भी नहीं चल पाता। तो जब भी, इसलिए सोते टाइम में जो आपको गर्म दूध पानी वो बता रहा हूँ, हल्दी वाला मिल्क, वो ही उसका काम कर रहा है। यदि वो कोई ना ले पाए तो सोते टाइम 1 गिलास गुनगुना पानी पीकर ही सोएं। वो आपको पूरी सुबह तक बिल्कुल स्वस्थ रखेगा, किसी तरह के भी माइल्ड और हल्के स्ट्रोक से बचा कर रखेगा। और जो दवाइयां जो डॉक्टर ने दे रखी हैं सर, उनको कोई ना छोड़ें। कोई कहे आयुर्वेद में ये सब है, होम्योपैथ में ये सारी चीजें हैं, वो सारी चीज प्रिकॉशनरी हैं सर। अगर किसी एलोपैथ ने या डॉक्टर्स ने आपको प्रेस्क्रिप जो भी बीपी या किसी तरह की मेडिसिन कर रखी हैं, उन्हें नियमित रूप से लेते रहें, उनको बिल्कुल ना छोड़ें। ये सारी चीजें सिर्फ एक इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए हैं, आपको प्रिकॉशनरी हैं। आप स्वस्थ रहेंगे तो उन दवाओं पर निर्भरता कम हो सकती है, लेकिन उनको बिल्कुल ना छोड़ें सर एक सर एक सर चीज मैंने सुना है कि ये यूरिन पास करने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। सर, उसमें तो कहते हैं कि कुल्ला भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे दोबारा से यूरिन बहुत तेजी से आएगा। गूगल वाले जो स्टोरी है ये है। आप पहले बाद में पहले पी सकते हैं सर। आपने उठे और प्रेशर है और तो आप ले सकते हैं सर, पानी पी के उसके बाद यूरिन चले जाए। और एक और सर, खाना खाने के आधे घंटे बाद हमेशा गुनगुना पानी पिए, ठंडा ना पिए सर, चाहे मई का जून का महीना हो सर एक चीज खाने के बाद चाय पी सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि वाटर थेरेपी है। जापान के लोग आपने देखा होगा और चाइना के लोग देखे होंगे कि बहुत ज्यादा जीवन जीते हैं। उसका एक कारण है वाटर थेरेपी है, वाटर ट्रीटमेंट है, कि वो हमेशा खाना खाने की आधे घंटे के बाद एक बार जरूर गुनगुना पानी पीते हैं। भोजन के बाद आधे घंटे, तुरंत मत गई, भोजन के साथ पानी बिल्कुल ना पिए सर। सर एक चीज ये है, जो भी पानी पीना भोजन से पहले पी लें सर। जी बोलिए सर। आपने त्रिफला के साथ बोला है कि 50 ग्राम अजवाइन, मेथी, 50 ग्राम मेथी और तीसरा 50 ग्राम सौंठ। राइट, थैंक यू। हरड़, बहेड़ा, आंवला, तो तीनों बेसिक उसके एसेंशियल्स हैं। यस यादव सर, जी सर। जो डायबिटिक हैं वो मॉर्निंग में शहद को छोड़ के नींबू पानी तो ले सकते हैं। हाँ जी जी, जो मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कहा कि जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, वो शहद उनको थोड़ा सा शुगर बढ़ा सकता है, तो उनको टर्मरिक वाटर ले सकते हैं सर। वो नींबू पानी तो हो ही गया, उसमें जो वीकली मैंने कहा लीवर के लिए डॉक्टर साहब, उसमें आप लेकिन बहुत ज्यादा हल्दी ना मिलाइए सर, और घर की पिसी हुई बनाइए सर अपनी खुद की। आधा चम्मच हल्दी गुनगुने पानी में डालेंगे, स्टर कर देंगे, और सर चुटकी भर उसमें दालचीनी और डाल दीजिए जी, और थोड़ी देर रुक जाइए सर। वो नीचे जो सॉलिड है सर हल्दी का, उसको हमें नीचे बैठ जाने देने जी। तो सिर्फ निथरा हुआ पानी, साफ पानी पीना है, क्योंकि हल्दी जो है सर, जो हमारे किडनी को फिल्ट्रेशन के लिए जो कच्ची हल्दी है सर, वो नुकसान कर सकती है। हमें पकी हुई इसलिए कहते हैं हल्दी, उबली हुई जैसे कच्ची लाएं, उबालें, सुखाएं, अपने घर में पीसें या पिसवा के रखें, वो यूज करें सर आप इसको। जी। आप सर 1 हफ्ता करके देखिए मेरा इसको, टर्मरिक वाटर और टर्मरिक मिल्क विद टर्मरिक मिल्क लें तो दालचीनी का पाउडर हल्का सा, बहुत चुटकी भर, और चुटकी भर काली मिर्च सर। ये आप 1 हफ्ता करें और आप देखेंगे कि आपको आमूलचूल परिवर्तन आपके, और ये सर रीजनरेशन ऑफ सेल्स भी करता है। टर्मरिक मिल्क का और टर्मरिक वाटर का सबसे बड़ा है कि जो भूलने की हम लोग, जो पार्किंसन, जो भूलने की थोड़ी सी हो जाती है सर, आप देखेंगे हफ्ते 10 दिन के अंदर ही आपको इसमें याददाश्त में अंतर आएगा, क्योंकि ये रीजनरेट ऑफ सेल्स करता है सर। जी, थैंक यू सर। एनी क्वेश्चन सर? सर आंवले के साथ कुछ और वो बाकी सर हमारे नीलट वालों ने बता दिया है। आज तो मैं ये था कि एक डे टू डे लाइफ में हम किस तरह से स्वस्थ रहें, और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हम चिंता करनी छोड़ देंगे, चिंता भी कम करें सर। बच्चों को जो करना है उनको करने दीजिए सर। बच्चों को हमने पढ़ा लिखा दिया, आप उनके फाइनेंशियल एक्टिविटीज को बंद कर दिए, उनके डे टू डे में हस्तक्षेप करना बंद कर दिए सर। बच्चों को बच्चे करने, हमने बच्चे पाल दिया, वो अपने बच्चे बड़े करेंगे सर। ये साइकिल है, प्रकृति है, चलती रहती है। तो हम लोगों को अपने ऊपर भी इस समय ध्यान देना है, और पार्टनर के साथ मस्ती रहनी है। भारत का भ्रमण करें सर, हम तो चाहेंगे हर स्टेट्स को देखें सीजन के हिसाब से।
और जब भी पासपोर्ट बनाएं, पासपोर्ट में वीजा लें सर, और हर साल भर में एक कॉन्टिनेंट में जरूर जाएं। 5 कॉन्टिनेंट में 5 साल में पूरे हो जाएंगे, क्योंकि ये 70-75 तक कर सकते हो साहब। इसके बाद हाथ पैर ढीले हो जाएंगे, आप कहीं फिर उन स्मृतियों को याद कर करके साहब खुश रहिएगा सर। सुबह जब आप ये नींबू पानी और नींबू शहद पियेंगे, जी निचड़ा हुआ नींबू और जी। शहद अपने चेहरे पर लगा लीजिए, वो आपका फेशियल हो जाएगा। ये बिल्कुल जो नींबू काट के छिलका हुआ उसमें आधा चम्मच शहद डाल करके, और एल्बोज को यू कैन क्लीन योर एल्बोज, योर आर्म्स। और एक चीज सर मैं भूल गया, जो हम लोग वो सब मिस करते हैं, रात में सोते टाइम नाभि में सरसों का तेल या नारियल का तेल या बादाम का तेल कुछ ना कुछ जरूर डालिए रोज नाभि में सर। ठीक है सर, अच्छी बात है सर। आप देखेंगे जो चमक है, गगन सिंह जी, यादव जी, सर, मैडम शाह जी, आप एकदम अलग नजर आएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। यूज करिए। ये सारी नाभि हमारी, देखिए नाल वहीं से होता है, बच्चा भोजन वहीं से लेता है, उसकी देखभाल जरूर करिए। बिल्कुल। नाभि में रियली जो है कोई भी जो है तेल जरूर यूज करिए सर। तो सर लगा आपने हमें बहुत अच्छा गाइडेंस दी है। नमस्कार सभी को, और जब कभी भी ये, और विशेष रूप से डायरेक्टर साहब को, नीलट के अधिकारियों को धन्यवाद कि उन्होंने हमें मौका दिया आप लोगों से रूबरू होने का और आप लोगों से बातचीत करने का। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू सर। यादव सर, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आज आपने टाइम स्पेयर किया और इतनी यूजफुल बातें बताई कि ये जो प्रोग्राम हमारा जो ऑलरेडी काफी यूजफुल प्रोग्राम था, लेकिन उसके कहते हैं उसमें चांद सितारे आपने लगा दिए। थैंक यू सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको यूजफुल चीजें शेयर करने। ये तो बोनस मिल गया, ये तो जी बोनस मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, बोनस आज हमें भी मिल गया आप लोगों के दर्शन करके जी। और सर यादव सर, जैसा आपने सुझाव दिया कि हर स्टेट घूमे, तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उत्तराखंड से शुरुआत करें सभी लोग। हाँ। और यहाँ आए, हरिद्वार आए या देहरादून आए, और हम लोगों के लिए कोई प्रोग्राम, आप लोगों के लिए कोई प्रोग्राम भी करें। आप लोग यहाँ पर घूमे भी और कुछ यहाँ से थोड़ा सा ज्ञान भी अर्जित करके जाए जो काम आएगा। सर हरिद्वार तो हम आते ही रहते हैं, तभी तो हम आते ही रहते हैं। शुरू कर लो, यहाँ से शुरू कर लेंगे। जी डायरेक्टर साहब, हमारे ऑनलाइन डायनेमिक है और हम तो जल्दी चाह रहे हैं कि देहरादून में एक सेंटर खोलें। तो हम लोग यहाँ पर, हमारे पास काफी सुविधाएं हैं। आप लोगों को जो हम बता रहे हैं ये सारी चीजें प्रैक्टिकल भी कभी कोर्स साल भर में 1 या 2 बार हम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी तो डायरेक्टर साहब से अनुरोध है कि हमें इसी तरह से याद करते रहें और हम आपके साथ जुड़े रहें। हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। नहीं यादव सर, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप लोगों का जो आपका एक्सपीरियंस, और स्पेशली मैं ये नोटिस कर रहा था कि आप पूरी कंप्लीटली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होके, और जो एक्सपीरियंस है वो आपका पूरा इरिगेशन में रहा और इस सब में रहा। उसके बाद में आपको इतना आयुर्वेद का इतना अच्छा आपने ज्ञान अर्जित किया है जो आपने शेयर किया आज जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने खुद नोट्स बनाए हैं, सब नोट किया है क्योंकि इससे पहले कि मैं सीनियर सिटीजन वाली उसमें जाऊं, तो अभी से मैं जो है इन चीजों को लेना स्टार्ट कर दूं। जी जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सभी को नमस्कार। नमस्कार सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कि आप और भी जो आपके जान पहचान के लोग हैं उनको आप जानकारी दें, साइबर सुरक्षा के बारे में जो है वो बताएं। जो चीज आपने सीखी है, जो नई चीज सीखी है कि कैसे कैसे, क्योंकि ये बहुत आम एक समस्या हो गई है। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड सर्किल में या आसपास में सोसाइटी में कोई ना कोई शिकार होता रहता है। आप लोग न्यूज में भी देखते रहते होंगे। तो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आप परिवार में और अपने सर्किल में जरूर लोगों के साथ शेयर करें। और जो हमारे प्रोग्राम को अटेंड करना चाहते हैं तो उनके लिए स्वागत है। तो हर महीने हम लोग प्रोग्राम ये करते ही हैं, तो उसकी जानकारी भी आप लोगों के माध्यम से उन तक पहुंचेगी तो और अच्छा रहेगा। कड़ी में और लोग जोड़ते जाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है
जी एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वुड एग्री विद दैट कि अभी जो है अवेयरनेस हो गई, क्रिएशन ऑफ सिचुएशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, until unless we have hands on practice we will not be confident. तो इस चीज का you can further extend it maybe a day or two later. एक चीज ले लें, अगर हमने आज फोन ले लिया या लैपटॉप ले लिया, कोई भी, या फेसबुक, just take one topic and have hands on that उसी चीज पे. So that will be a great boon and we'll be very very confident in that. अभी confidence level नहीं आया है. कोई बात नहीं मैम, आप You've done a great job. दीजिएगा You've explained it इसमें, very और well. Bless you. हैंड्स का भी कुछ हम लोग प्लान करते हैं कि कैसे उसको किया जा सकता है। अनुराग सर, एक और रिक्वेस्ट है जी गुप्ता कि सर, आप जो है स्पेशलाइज जो है कुछ जी, प्रोग्राम रखिए। ये तो जनरल कर रहे हैं, है ना, जी साइबर सिक्योरिटी या जो ये वगैरह हम लोग यूज कर रहे हैं, उसके लिए एक 4-5 डेज का स्पेशलाइज प्रोग्राम रखें तो ज्यादा हम लोग को यूजफुल होगा। जी ठीक है सर ने बहुत बढ़िया से किया। थैंक यू सो मच निखिल सर जी, और डॉक्टर अनुराग, थैंक यू। थैंक यू सर एक रिक्वेस्ट है, जी गुप्ता सर। हाँ ये जो प्रोग्राम है इसको 1 आवर का होता है, इसको 2 आवर्स किया जाए ताकि थोड़ा सा स्लो होगा, वी कैन अंडरस्टैंड बेटर। ओके ठीक है गुप्ता सर, इसके बारे में भी मैं प्लान करता हूँ टीम के साथ और मैं प्रयास करता हूँ कि इसका कुछ टाइम उनको बढ़ाए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। निखिल सर, आई एम डॉक्टर केजी सोनी स्पीकिंग। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने बताया था ना कोई एंटीवायरस के बारे में, तो मैं आपसे ये सजेशन लेना चाहता हूँ कि कौन सी एंटीवायरस हम अपने लैपटॉप में डालें, उसका कोई नाम दो।